पाकिस्तानी लीगल सिस्टम वर्क्स. जब वो नेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना चाहते हैं तो उनको पता नहीं होता कि रिसर्च कैसे करनी है, कौन से सर्च इंजन हैं, कौन से सोर्सेज ऑफ लॉ हैं. सो द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू एक्सप्लेन हाउ Pakistani legal research works, basically. What are the sources of law, how to navigate Pakistan law side, what are the other sort of search engines that you can rely on. And before I start, I would like to emphasize that Pakistan is a common law country in which you need to be aware of the importance of case law. तो हमारा जो basic fundamental research का starting point होगा वो हमेशा जो हमारा basic statute है, that is the Constitution of Pakistan. Constitution of Pakistan 1973 is the first source of law and your go-to. Whenever you read a moot proposition, you'll come across a lot of references to constitutional rights, constitutional articles, or writ petitions का भी अगर जिक्र होता है कि this is a public interest litigation before the High Court, then it will be under Article 199 of the Constitution, or it is a public interest litigation before the Supreme Court, then it will be Article 184(3) of the Constitution of Pakistan. So always you'll see कि आपकी जो भी moot proposition होती है, you can never do well until and unless you're able to identify कि ये किन constitutional articles को refer कर रहा है, या which constitutional articles are being referred to in the article. So in the moot proposition, always when you read a moot proposition, national law के ऊपर identify कि कौन से constitution के articles relevant हैं. अगर तो वो moot proposition में लिखे हुए हैं कि freedom of speech, you can see it's Article 19. If it's right to information, it's Article 19A. If it is maintainability or jurisdiction of Supreme Court, Article 184(3), High Court, Article 199. ये कुछ चीजें जो आपकी fingertips पे होनी चाहिए, और ये if you have some notebook before you, you can note down कि आपको कौन से articles आपके लिए बहुत जरूरी हैं जिनको आपको देखना है to begin with. जो अगर आप नहीं भी पाकिस्तानी लॉ पढ़ रहे हो, you're doing external law, आपको फिर भी जिन आर्टिकल्स का पता होना चाहिए. They're Article 1 to 25 of the Constitution. They're extremely important because they cover your fundamental rights. Article of fundamental rights and the basics of the Pakistani legal system as well. So Article 1 to Article 25 are extremely important. They cover majority जो उसके अंदर है वो constitutional rights है. Article 9 is your right to life. Article 10A in particular speaks about the right to fair trial. It was included after the 18th Amendment, but Article 10A इसके बारे में बात करते हैं. Then we have Article 14, which speaks about the right to dignity. Again, a very important article. Then we have the law against double jeopardy. वो भी आपको पता होना चाहिए, वो Constitution के articles के अंदर ही covered है. और फिर हमारे पास freedom of speech है, Article 19 में, 19A में right to information है, freedom of assembly है. So इस तरह के constitutional rights covered हैं Article 1 से Article 25 तक. तो आपको इनको अच्छी तरह से एक दफा पढ़ लेना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन आप खरीद भी सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 is available online as well. I'll show you how to access the constitution using Pakistan law site shortly. So Article 1 to 25 तो कवर हो गया. उसके बाद आपको जो पता होना चाहिए, something that I consider very important, those are Articles 180 to Article 199. They're very important because Article 180 onwards हम देखते हैं, even 175 onwards, although 175 speaks about the composition of the Supreme Court. Article 180s के अंदर हमारे पास Supreme Court की 3 किस्म की jurisdictions आ जाती हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होता है ना मूट के अंदर, वो आपसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन से आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत खड़े हैं. तो आप 3 आर्टिकल्स हो सकते हैं, या आइदर यू कैन गो इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट मैटर अंडर आर्टिकल 184(3), or you can invoke the appellate jurisdiction of the Supreme Court, or thirdly you could go in advisory. वो advisory का तो आपको question नहीं आएगा, but advisory jurisdiction भी होती है, the third type of jurisdiction that the Supreme Court has. So Supreme Court has original jurisdiction जो कि usually public interest matters के अंदर invoke की जाती है. Then we have appellate jurisdiction जिसके अंदर high court या lower courts के challenge, higher courts के और different subordinate courts के जो decisions है वो appeal किए जा सकते हैं before the Supreme Court. And then we finally have advisory jurisdiction जिसके अंदर Supreme Court के judges advisory jurisdiction के under advice render करते हैं to the President of Pakistan. So these are the 3 sorts of jurisdiction the Supreme Court has. You need to know कि इनके articles क्या हैं, इनकी basic points क्या हैं, basic concept क्या है Supreme Court की jurisdiction का, तो it's important. Then we have Article 199 that is extremely important, that speaks about the 5 writ petitions in Pakistan. आप High Court के सामने
5 में से किसी एक रिट पिटिशन को दायर करके जा सकते हो। देयर मैंडेमिस सर्शुरेराe प्रोहिबिशन की है हमारे पास, देयर इज हेबियस कॉर्पस जो आपको पता होता है, और को वारंटो। दीज आर द 5 रिट पिटिशंस ऑफ द हाई कोर्ट जो कि आर्टिकल 199 के अंदर कवर्ड है। तो जब आपने रिसर्च शुरू करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट वुड ऑलवेज बी द कॉन्स्टिट्यूशन। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज इस मूट प्रोपोजिशन के अंदर रेलिवेंट है। ज्यूरिस्डिक्शन, मूट प्रोपोजिशंस हमेशा या तो सुप्रीम कोर्ट के बिफोर होती हैं, रेयरली हाई कोर्ट के बिफोर होती हैं। सो द मेन कोर्ट जिनके अंदर आपने जाना होता है वो आइदर इट्स द सुप्रीम कोर्ट, मोस्टली इट्स द सुप्रीम कोर्ट, और इट्स द हाई कोर्ट. So in order to know the jurisdiction part, because remember you have to include a statement of jurisdiction in the moot court, in the moot memos that you're making for the moot court competitions, you need to know कि आपने किस आर्टिकल के अंडर jurisdiction इन्वोक की है. Secondly, आपको जो मैंने पहले बताया आर्टिकल 1 से 25 तक, then we have principles of policy, Article 25 onwards. And I'll explain what are principles of policy. Principles of policy are given in the Constitution. They are sort of broad statements or broad sort of objectives for the government, like free education for all children till the age of 16. It is Article 25. Article 25A is a principle of policy. It's not a right. And that is the distinction you should be aware of. We have certain constitutional rights, and then we have principles of policy. The distinction between constitutional rights and principles of policy is, and this is an important point, you can write down if you're noting down things here, that can be asked by judges as well, that, you know, what principle of policy. Constitutional right अगर आपका breach होगा, you can seek a legal remedy for it. पर अगर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, जैसे आज पाकिस्तान के अंदर तमाम बच्चे जो 16 साल से कम हैं उनको फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही है, पर क्या हम इसके ऊपर can we say that the rights of those children who are not getting education, their right under Article 25A is being breached? No, we cannot say it because it's a principle of policy. Principles of policy are not justiciable. Justiciable means that wo broader objectives hain for the government. They are sort of things that have to be complied with. They're targets for the government, but agar wo breach ho rahe hain, you cannot seek a judicial remedy for it. All right, so this is something that you need to be aware of. These are the basics of the Constitution I've covered with you. Constitutional rights, principles of policy, and then the articles dealing with the Supreme Court and the High Court that are given Article 175 onwards. Article 175 deals with the composition of the Supreme Court, but then we have important articles like Article 184, 186, 187, and Article 199. ये तो आपके basics हैं, ये तो आपको पता होने चाहिए, irrespective of whether you're an external student or you're doing Pakistani law, जो भी आप लोग कर रहे हो, even if you're in your first year, you have decided to become law students, so इस इतनी लेवल की लीगल नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए. Now, हमने देख लिया मूट प्रोपोजिशन को, हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट शुड ऑलवेज बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. दैट इज द बेसिक स्टैट्यूट. पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सारी लेजिस्लेशन है उसका फाउंटेन हेड जिसको कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है. सो ऑलवेज स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. सी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के ऊपर रिफर कर सकते हो या व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन यू रिफर टू. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ. The second sources of law that you should be looking at, they are statutes. Statutes होते हैं हमारे जो कानून नेशनल असेंबलीज ने पास किए होते हैं. हम bicameral legislature है हमारे पास. We have a federal system of government in which we have the center that is legislating on some subjects, and then we have provinces who also have legislative autonomy in certain subjects, and they have provincial legislatures. तो हमारी एक नेशनल असेंबली है जो कि कौमी सतह के कवानीन बनाती है या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए कवानीन बनाती है. देन वी हैव आवर प्रोविंशियल असेंबलीज इन ईच ऑफ आवर प्रोविंसेस, like Punjab, Sindh, Balochistan, KP, they all have their own provincial assemblies that are going to legislate on certain specific subjects. आपने रिसर्च में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन देख ली और उसके बाद आपने देखना है कि कौन से कवानीन को रिफर किया जा रहा है. क्या आपको पता चल जाएगा कि अच्छा अगर हमारे पास कोई इन्वायरमेंटल लॉ रिलेटेड मूट प्रोपोजिशन है तो इट शुड बी द इन्वायरमेंट Protection Act 1997. Oh, it is related to the right to information, so it should be the Right to Information Act 2021. Oh, this is a moot proposition related to cybercrime, so the relevant legislation would be the Prevention of Electronic and Cybercrime Act 2016. तो आपको एक लॉ, एक बेसिक स्टैट्यूट आ गया आपका जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर आपके पास सेकंड आ गया जो आपकी नेशनल असेंबली के लेजिस्लेशंस होते हैं जिनका मैंने जिक्र कर दिया कि एनवायरनमेंट एक्ट आ गया हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया,
And then we also have provincial laws, like we recently had the Punjab Defamation Act, but then we also have other provincial legislations like the Domestic Violence Act 2016, जो कि पंजाब के ऊपर अपना है Violence Against Women Act 2016, and then we have 2013 legislation for Sindh. So we have different laws relating to different provinces as well. तो आपका second source of law तो आपके statutes आ गए, जो कि National Assembly के भी हो सकते हैं और provincial assemblies के भी हो सकते हैं. थर्ड जो हमारी हायरार्की है सोर्सेज ऑफ लॉ की, उसके अंदर वी हैव केस लॉ. केस लॉ कम्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, केस लॉ ऑफ द हाई कोर्ट. Now you need to be aware of certain factors जो कि इसके अंदर भी आपको में बेसिक्स हैं लॉ की जो आपको पता होनी चाहिए before we delve into Pakistan law side, and mind you it won't take long now. आपको ये पता होना चाहिए कि we have a Supreme Court, we have high courts in all the provinces, but we also have courts, the Supreme Court of Azad Jammu and Kashmir, and we also have provincial courts in AJK and GB. They're different from the legislation we have, from the courts we have in Lahore, in Quetta, in Karachi, like the Sindh High Court, the Lahore High Court, उनसे वो different है. तो अगर आपको कोई cases मिल रहे हैं आज़ाद कश्मीर कोर्ट के अंदर के, आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के या उनकी जो appellate court है, उनके आपके पास judgments आ रहे हैं, they don't have the same legal authority as judgments of like Sindh High Court or Lahore High Court. अगर आप एक मूव प्रोपोजिशन के लिए केसेस सर्च कर रहे हो, तो एजेके और जीबीपी के जो केसेस, जो गिलगित बल्तिस्तान के केसेस होते हैं, दे आर नॉट रियली रेलेवेंट हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर. ठीक है, क्योंकि उनके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी सेपरेट हैं, उनके कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेजिस्लेशन है. सो उनके लिए आपने उनके केसेस के ऊपर जब आप पाकिस्तान लॉ साइड में खोलूंगी और आपको दिखाऊंगी तो आएगा, बहुत सारे केसेस आएंगे एजेके के, बहुत सारे केसेस आएंगे गिलगित बल्तिस्तान के. दे आर नॉट रेलेवेंट फॉर योर पर्पसेस. यू आर ओनली कंसर्न्ड विद जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. अब जो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है वो लाहौर हाई कोर्ट को बाइंड नहीं करती है. आई होप यू गाइस नो इट, बट आई एम जस्ट रीइटरेटिंग एंड एम्फसाइजिंग फॉर ऑल द पीपल हु हियर. सो अगर आप एक मूड प्रोपोजिशन के ऊपर रिसर्च करके लेके जा रहे हो एंड यू लेट्स से गोइंग बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट, आपका जो मूड प्रोपोजिशन था दैट आस्क यू कि अच्छा ये लाहौर की हाई कोर्ट है या व्हाटएवर इमेजिनरी लैंड उन्होंने क्रिएट किया होता है, फिक्टिशियस नेम होगा, लाहौर हाई कोर्ट के सामने सिंध हाई कोर्ट की, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट की कोई भी जजमेंट बाइंडिंग नहीं होगी. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. The only judgments that are going to bind the High Court are going to be judgments of the Supreme Court. And अगर हमारे पास एक जज की हाई कोर्ट, हम एक जज के सामने जा रहे हैं हाई कोर्ट के, और अगर हाई कोर्ट के कोई दो डबल बेंच की या दो जजेस की जजमेंट है तो वो उनको बाइंड करेगी. और अगर हम दो जजेस के सामने जा रहे हैं तो अगर हाई कोर्ट के कोई 5 जजेस की जजमेंट है वो उनको बाइंड करेगी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंड करेगी. रेस्ट विल ऑल बी persuasive. You are definitely going to cite them in your research, and they're going to be useful as long as they're from the high courts of Pakistan and not from Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan are separate constitutional units. All right, they're part of Pakistan territory, but उनकी legislation separate है. आप as long as सिंध हाई कोर्ट के या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट्स लेके जा रहे हो before the Lahore High Court, or if you're going before the Peshawar High Court, you're taking judgments of the other parts of other provinces के high courts के आप judgments लेके जा रहे हो, it should be fine. But I'm telling you that they're not going to be binding unless वो, मैंने आपको लाइक न्यूमेरिकली बता दिया कि अगर ज्यादा लोगों जजेस की जजमेंट है उसी कोर्ट की तो वो बाइंड करेगी. द अदर कोर्ट्स नो मैटर कितने जजेस की है, दैट विल ओनली बी परसुएसिव. The high courts are usually normally bound only by the judgments of the Supreme Court. And जब आप Supreme Court का भी देखते हो तो अगर Supreme Court का सिंगल जज के सामने आप जा रहे हो तो उसको दो मेंबर्स की या दो जजेस की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग होगी उसके ऊपर, और जो दो मेंबर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अगर उनके सामने जा रहे हो तो उनके ऊपर एक मेंबर की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी पर वो परसुएसिव होगी. दिस इज हाउ द हायरार्की वर्क्स इन टर्म्स ऑफ केस लॉ एज वेल. मैंने बता दिया कि एजेके और जीबी के जो केसेस होंगे उनको आपने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है. हाँ, अगर आपको कोई और केस नहीं मिल रहा तो आप उनको निकालो, लेकिन यूजुअली प्रेफरेंस दी जाएगी आपके प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं उनको. और स्पेशली जो कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट जो कराची के अंदर है. उनकी जजमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं, उनके ऊपर बहुत एम्फेसिस ले किया जाता है. बट आप बलूचिस्तान के पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर भी उतना ही एम्फेसिस ले कर सकते हो. ये हमारा
थर्ड सोर्स ऑफ लॉ कवर हो गया जो केस लॉ है। चौथा हमारे पास आ जाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप इनको भी रेफर कर सकते हो, जैसे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनके अपने रूल्स हैं, डिफरेंट बॉडीज हैं, उनके अपने रूल्स हैं। अगर आपके पास कोई स्टैट्यूटरी बॉडी से रिलेटेड केसेस आ रहे हैं मोस्ट प्रोपोजिशन के अंदर, जो कि बहुत रेयर सिनेरियो है, पर उस स्टैट्यूटरी बॉडी के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो कि पाकिस्तान लॉ साइट पे अवेलेबल होते हैं। आई विल शो यू हाउ टू एक्सेस them. All right, so now we're clear about the sources of law. Starting at the top of the hierarchy, we have the Constitution. Always start your research by finding out what are the relevant articles of the Constitution that this moot proposition is covering. It could either be given in writing कि हम कौन-कौन से articles को देख रहे हैं Constitution के, or it could be implicitly referred to, and then you have to open the Constitution and see कि कौन-कौन से आपको लग रहा है कि match कर रहे हैं articles आपकी moot proposition. So then we have statutes, National Assembly के भी, provincial assemblies के भी, then we have case law, then we have rules and regulations. All right, so this is how you're going to go ahead for researching अपने sources of law में. अब हमारे जो search engines हैं, जहाँ पे आप जाके इन constitution को या statutes को या case law को access कर सकते हो, हमारा जो search engine है main पाकिस्तानी cases का, that is Pakistan Law Site. Digitally आप पाकिस्तान Law Site के ऊपर जा सकते हो, लेकिन अगर आप in person research करना चाह रहे हो या libraries के अंदर बैठ के research करना चाह रहे हो या किसी sort of like आपको बुक्स से रिसर्च करनी है तो फिर लॉ डाइजेस्ट होते हैं, पाकिस्तान का लॉ डाइजेस्ट है, फिर मंथली लॉ डाइजेस्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मंथली रिव्यू आता है जिसके अंदर जो भी जजमेंट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की दैट आर अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, वो एक रिसाला निकलता है, वो रिसाला लाइब्रेरीज में आता होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू कहते हैं। और साल के एंड के ऊपर जो पूरे साल की रिपोर्टेड जजमेंट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, वो एक इतनी बड़ी बुक होती है जिसको ALD कहते हैं, कि वो ऑल पाकिस्तान का लॉ डाइजेस्ट होता है, वो साल के एंड के ऊपर आ जाती है लाइब्रेरीज के अंदर, तो आप उनसे भी रिसर्च कर सकते हो। लेकिन आजकल क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स इन लिविंग इन द स्टडीइंग इन द 21st century, so preference is laid on digital methods and means. So the main search engine that we use is Pakistan Law Site. I will be sharing my screen and showing you guys कि Pakistan Law Site कैसे operate करती है, and how can you do your research using Pakistan Law Site. I will show you everything कि आपने कैसे इनको access करना है, कैसे आप keywords use कर सकते हो, everything I'll be showing you. Can anybody just please confirm in the chat box if you can see my screen? I hope guys you can see my screen. Okay, perfect. I'm going to open Pakistan Law Site. This is Pakistan Law Site. आपने देख लिया, ये खुल गया है आपके सामने. मैंने लॉगिन किया हुआ था, बट यूजली लॉगिन आता है और फिर आपको जो भी आपके एक यूजर नेम होता है या पासवर्ड होता है आप उसको डालते हो और फिर ये आपके सामने विंडो खुल जाती है. सो व्हेन यू लॉग इनटू पाकिस्तान लॉ साइट, दिस इज द विंडो दैट इज गोइंग टू ओपन अप. नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टैट्यूट सर्च. कि अगर आपको मैंने दिखाना है कि सबसे पहले आपने रिसर्च कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करनी है, दैट इज द मोस्ट बेसिक स्टैट्यूट ऑफ पाकिस्तान. सो यू गोइंग टू गो in this on the left side of the interface, और आपको थर्ड पे सेकंड पे जाना है statute search में. When you press statute search, this is the window that opens up. You're going to go on C, press the alphabet C, और आप यहाँ पर जाओगे तो ये जितने पाकिस्तान के अंदर कानून पास हुए हैं C से, वो सारे इसके ऊपर गिवन है. You just have to go down. You can either scroll down and find the constitution, or you could simply go here and type Constitution of Pakistan. Constitution of Pakistan 1973. You press Constitution of Pakistan 1973, ये आपके सामने Constitution खुल जाती है. You press on it और आपके पास हर आर्टिकल आ जाता है. यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल, सेक्शन. ये सेक्शन यूजुअली स्टैट्यूट्स का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल होते हैं. ये एक गलती है इनकी थोड़ी सी. सो हियर you can see कि आपने कौन सा आर्टिकल खोलना है. उनकी हेडिंग्स दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, सेफगार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन. These are like broad highlights कि ये आर्टिकल किस सब्जेक्ट से डील करता है. You can read the article here. So let's see कि ये double jeopardy के against हमारे पास protection है. Double jeopardy is that you cannot be punished twice for the same offense. So you go on the read button and you open it. ठीक है, आप ये देख लेते हो. This is Article 12 of our Constitution. ये Article 12 हमारे सामने खुल जाता है इधर. But if you want to see कि अच्छा ये तो Article 12 मैंने पढ़ लिया कि no law shall authorize the punishment of a person for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission or for an offence for a penalty greater than or different kind. ये आपने पढ़ लिया. Substantive words क्या है उसके.
बट इफ यू वांट टू सी कि इसके नीचे केस लॉ कैसे है, क्योंकि रिमेंबर हमारे कोर्ट्स का काम है कि वो लेजिस्लेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, तो हमारे पास कभी कभी वर्डिंग से तो हमें क्लैरिटी नहीं होती, सो वी नीड टू सी कि केसेस क्या है. सो इन ऑर्डर टू एक्सेस केस लॉ अंडर, आई थिंक आई विल जस्ट मिनिमाइज दिस. ठीक है, तो हमारे लेफ्ट साइड पे तो हमने देखा कि हम आर्टिकल रीड कर सकते हैं. गाइस जस्ट अ सेकंड, आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम विद द इंटरनेट. Article here, you've gone on statute search, you've typed Constitution of Pakistan 1973 after pressing on the alphabet C. This is the menu that opens in front of you. It has all the articles of the Constitution. So agar aapko moti, if you read the, if you have the commentary of the Constitution in front of you, you'll see it's a very like heavy book. So here you have all the articles, and agar aapne read karna hai article, so you go on the left side and you read it. But if you have to look at the case law under the particular article, you go on the right side, आप case law के ऊपर press करते हो, और जितना case law है उस particular article के ऊपर, it opens up in front of you. This is one way of doing your research, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बजाय कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंट्री खरीदो और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वहां से पढ़ना शुरू करो. It's a good idea to go on Pakistan law site, go on statute search, type Constitution of Pakistan. आपको सारे cases under a particular article जो reported हैं वो आपके सामने खुल जाते हैं. This is one way. But if you have, let's say, another law, जैसे कोई environment से related legislation है, environment protection के related, तो आपको नहीं पता कि exact law का क्या नाम है. You've come across the moot proposition, you see कि अच्छा ये, let's say, family law से related है या environmental law से related है, तो आपको बस सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि फैमिली से रिलेटेड है या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. लेट्स पिक आउट फैमिली. So if you come across a moot proposition, you're not aware of the legislation, आपको कुछ नहीं पता, बस आपको सिर्फ पता है कि family law से related है, always go on statute search, press F, and you'll see कि अच्छा family कहाँ आता है. अच्छा ये फातिमा family courts. अच्छा we have family courts amendment ordinance, family courts ordinance 2002. Okay, दो ही मिले हैं हमें यहाँ पे. If you type family here, आपके जितना लेजिस्लेशन रेलिवेंट है ऑन फैमिली लॉज वो खुल जाती है. सारे लॉज आपके पास आ गए हैं फैमिली लॉ से रिलेटेड, जो आज़ाद कश्मीर के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिविल सर्वेंट्स की जो फैमिलीज के हैं, फैमिली कोर्ट्स के, हिंदू लॉज के, Muslim family laws, West Pakistan family laws, all the legislation relevant has opened up. आप किसी भी statute के ऊपर press करोगे, you'll see कि यहाँ पे statute के articles given होते हैं, उनका definition नहीं दिया होता, एक brief caption दिया होता है. If you go here, you can read the article, and if you go on the right side, you can access all the case law under that particular section of that statute. So statute search ये है. But usually Pakistan law site लोग खोलते हैं to do case law research. अब हम जाते हैं केस लॉ सर्च के ऊपर. जब भी केस लॉ सर्च करनी होती है, यू नीड टू कम अप विद कीवर्ड्स. कि अगर आपके पास एक लेट्स से मूट प्रोपोजिशन है ऑन क्रिश्चियन डिवोर्स, और यू हैव ए मूट प्रोपोजिशन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपके पास मूट प्रोपोजिशन है ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, लेट्स से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि अभी एक मूट आ रहा है जिसके अंदर एनवायरनमेंट के ऊपर बनाई हुई थी. सो लेट्स पुट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हियर. ये हमने कीवर्ड डाल देना है अपने यहाँ पे. इंटर कोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे कोर्ट से रिलेटेड जो भी आपको जजमेंट है वो दे देगा. बट इफ यू वांट टू लुक फॉर स्पेसिफिक जजमेंट्स, टाइप सुप्रीम कोर्ट. लेट्स स्टार्ट विद सुप्रीम कोर्ट पहले. व्हाट्स रॉन्ग? Yeah, here, सुप्रीम कोर्ट. आपने सुप्रीम कोर्ट टाइप कर देना है. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से जो भी सुप्रीम कोर्ट की रेलेवेंट केस लॉ है वो आपके सामने खुल जाएगा. द बेस्ट वे इज कि आपको ये हेड नोट्स दिए होते हैं, आप हेड नोट पढ़ो और फिर देखो कि कौन सा आपसे रेलेवेंट आ रहा है. अच्छा ये आ गया, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, ये वर्क एनवायरमेंट से रिलेटेड है. नो, दिस इज नॉट रेलेवेंट टू अस. दिस इज ऑल्सो वर्क एनवायरमेंट. दिस इज environment related, but it also deals with mining, so maybe it's not that relevant. हमारा let's say air pollution से related है, तो let's keep scrolling down and we'll come across कि अच्छा नहीं ये air pollution से relevant भी आ जाएगा आपके पास environment protection.
ठीक है, तो इस तरह आप लोग स्क्रॉल करते जाओगे हेड नोट्स को और देखते जाओगे, ठीक है। So this is how you do your case law search by putting a keyword. जब आपने कीवर्ड से रेलेवेंट, लेट्स से हमें एक रेलेवेंट जजमेंट मिल गई है, ये हमें लग रहा है रेलेवेंट है, बाय रीडिंग द हेड नोट्स, केस डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, ये आपके सामने आ जाती है पूरी जजमेंट। Again, I'm having trouble with the internet, but let's wait. एक सेकेंड। Sorry, let me try again. Yeah, perfect. So now if I, let's say, open any judgment by putting environment protection again, environment protection, and I open this judgment, ये मेरे सामने खुल गई है। ये अब कंप्लीट जजमेंट यहाँ से शुरू होगी, याद रखना। ये ऊपर हेड नोट्स दिए होते हैं सारे, जजमेंट वहां से शुरू होती है जहाँ पे ये लिखा होता है, कभी बहुत लंबे हेड नोट्स होते हैं, ये आ गई आपके पास जजमेंट। अब अगर आपको लगा कि हाँ ये रेलेवेंट जजमेंट है, तो मैंने इसको पढ़ना है, मैंने इसको प्रिंट करना है, तो आपने जाना है, इसमें कोई भी कॉपी नहीं कर सकते आप कोई भी टेक्स्ट कि अच्छा ये मुझे रेलेवेंट पोर्शन लग रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू कॉपी इट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बुकमार्क बाय गोइंग हियर, बुकमार्क कर लिया, आपने साइटेशन लिख लेनी है, दिस इज ऑलवेज द साइटेशन ऑफ द केस। ये एक एड्रेस होता है जजमेंट का, जस्ट लाइक यू हैव हाउस एड्रेसेस, सो जजमेंट का एक एड्रेस होता है। You go here, you see it's PLD 2024 Supreme Court 795. You need to write down PLD 2024 Supreme Court 795. Okay, and then you've bookmarked it as well. आप जाओगे यहाँ पे saved citations में, follow it. You'll go on saved citations. You find it here. आपके सामने ये पूरी जजमेंट खुल जाएगी। अभी भी ये कॉपी नहीं हो सकता इसमें से कुछ। So what you need to do is कि यहाँ पे आपके ऊपर कहाँ गया है? I don't know how to minimize this. I hope कि मैं कट नहीं जाती मीटिंग से by pressing this. Yeah, I'm still in the meeting, thank God. Okay. So I don't know why it's doing finish update here, but you go on this window and you go on print. Okay? Print में आप जाते हो और यहाँ पे instead of destination में कोई printer डालने की, just save it as a PDF. Save करो, अपने desktop पे save कर लो, और जब it's saved, then you will be able to select, copy, paste, print, do whatever. But you need to save it first like this before copying specific portions of the judgment or anything. All right? वरना ये नहीं होता है. That's one very important hack I've told you. Okay, now this was just a basic way कि अच्छा आपको अगर कोई भी केस लॉ ढूंढना है किसी भी स्पेसिफिक टर्म के, किसी भी स्पेसिफिक चीज के ऊपर, just put keyword here and then you आप last 5 years की जगह last 10, 15, 20 years या all years कर सकते हो। ये आपके पास एक ऑप्शन होती है। बट समटाइम्स आपको एक स्पेसिफिक जजमेंट ढूंढनी होती है कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मंसूर अली शाह की इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर एक जजमेंट आई है रिसेंटली, वो मुझे लगता है मेरी मूड प्रोपोजिशन से रेलेवेंट होगी, तो देन आई गो ऑन माय सर्च। ठीक है, मुझे पता है जस्टिस मंसूर अली शाह की एक जजमेंट थी, मैंने खबरों में देखी, मुझे याद नहीं आ रहा है, या ओ मिशा शफी की जजमेंट थी हरासमेंट पे, मुझे नहीं मिल रही है, ओ जस्टिस अतर मिनल्ला की जजमेंट थी ऑन डिजिटल राइट्स या कुछ, उन्होंने पीका का कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था। देन यू गो ऑन कोर्ट वाइज सर्च, फिर आप यहाँ पे कोड डाल देते हो कि अच्छा मंसूर अली शाह है तो इस्लाम सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, यू पुट सुप्रीम कोर्ट हियर। ओके, अब बुक नेम आप SCMR डाल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, आप PLD डाल सकते हो। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज abbreviations. If you have a notebook in front of you, SCMR is Supreme Court monthly review, PLD is Pakistan Law Digest, then we have MLD is monthly law digest, and you'll see कि ये क्या है। If you want citation search, ये आपके सामने खुल जाता है। CLC is civil law के ऊपर आपके लिए monthly law digest, Pakistan Law Digest, Pakistan Criminal Law Journal. This is also Pakistan Criminal Law Journal. Then you have SCMR Supreme Court monthly review, and this is yearly law review. ये आपके relevant हैं। SCMR, YLR, PCRLJ, PCRLJN, PLD, MLD and CLC। अगर कुछ सिविल लॉ की प्रोपोजिशन है वो आप ऐसे सर्च करते हो।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप साइटेशन सर्च में चले जाते हो और अगर आपको किसी जजमेंट की साइटेशन पता है, लाइक यू नो कि उसका एड्रेस क्या है, यू नो इट्स PLD व्हाटएवर, देन यू गो टू पुट PLD, लेट्स से हमने जो जजमेंट सेव की थी, लेट्स फाइंड इट अगेन, PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट है, तो लेट्स पुट सुप्रीम कोर्ट हियर। पेज नंबर इज ऑलवेज ये वाला नंबर जो एंड पे दिया होता है 349, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। क्या अगर आप यहाँ से देखो 1503, these are पेज numbers, so let's put 792, okay, 795, so sorry, we found the same judgment। हमें इसका citation पता थी, तो हमने citation पता है तो यहाँ से ढूंढ लेंगे by doing citation search। अगर हमें citation नहीं पता और हमें सिर्फ एक जजमेंट ढूंढनी है जो हमारी मूट प्रोपोजिशन से रेलेवेंट हो, फिर हमने केस लॉ सर्च में जाना है एंड वी नीड टू जस्ट पुट अ कीवर्ड हियर, और हमने कोर्ट्स का डालना है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद सुप्रीम कोर्ट के केसेस एंड देन मूव टू हाई कोर्ट, या यू कैन स्पेसिफिकली पुट लाहौर हाई कोर्ट और उनके आप जजमेंट्स ढूंढो। ठीक है, दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट पाकिस्तान लॉ साइट को आप कैसे एक बेसिक लेवल पे नेविगेट कर सकते हो। हाँ, जब आप लॉ फर्म्स में जाते हो या जब आपको बहुत ही किसी स्पेसिफिक मूट प्रोपोजिशन से रेलेवेंट, कोई स्पेसिफिक केस प्रोपोजिशन से रेलेवेंट कोई रिसर्च करनी होती है, तो फिर उसके लिए ऑब्वियसली एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है। पर एक बेसिक सा आइडिया देना मेरा मकसद था। आप लोगों को कुछ समझ आया या डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नाउ आई बी एट द स्टेज टू टेक क्वेश्चंस। आई सॉ अ कपल ऑफ पीपल हैड रेज्ड देयर हैंड्स, so if you have any questions you can ask them. I've told you how to print judgments using Pakistan Law Site, how to do citation search, उनसे relevant cases। मैं जो strategy हमेशा use करती हूँ अपनी research के लिए, even law firm के अंदर, मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम मिलती है कोई रिसर्च के लिए, मैं सबसे पहले देखती हूँ कि अच्छा इससे रेलेवेंट लॉ कौन सा होगा। तो मैं गूगल सर्च से भी लॉज पता चल जाते हैं, तो मैं गूगल सर्च करती हूँ कि अच्छा फैमिली से रिलेटेड पाकिस्तान में कौन सी लेजिस्लेशन है, लेट्स से, तो दे विल गिव यू अ लिस्ट कि ये रेलेवेंट लेजिस्लेशन है। खालिद जफर एसोसिएट्स हैं जिन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स डाले हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर जो आपको बेसिक्स ऑफ पाकिस्तानी लॉ एक्सप्लेन कर देते हैं, या आपको एक कोई भी स्टैट्यूट का ओवरव्यू दे देते हैं या कॉमेंट्री दे देते हैं, तो मैं उनको देख लेती हूँ। फिर मैं उस स्टैट्यूट को पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ कि अच्छा अगर है कि इंटरम एप्लीकेशन, इंटरम मेंटेनेंस का कोई केस है फैमिली लॉ का, तो आई विल सी कि अच्छा फैमिली लॉ मेंटेनेंस, ये मैं गूगल पे डाल दूंगी, फिर मुझे आ जाएगा कि अच्छा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर इसके ऊपर इससे रेलिवेंट कुछ है, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964 में इससे रेलिवेंट कुछ है। फिर मैं उन आर्टिकल्स को ढूंढती हूँ, ठीक है, और फिर मैं उन आर्टिकल्स को जब स्टैट्यूट सर्च में जाती हूँ, स्टैट्यूट को सर्च करती हूँ, आर्टिकल को पढ़ती हूँ, आर्टिकल का रेलेवेंट केस लॉ देखती हूँ, तो मुझे सारा केस लॉ मिल जाता है कि उस आर्टिकल के ऊपर कितने रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। तो सारा का सारा आपको इस तरह से मिल जाता होता है। इट्स ऑल अवेलेबल ऑन पाकिस्तान लॉ साइट, ऑल द रिपोर्टेड जजमेंट्स आर अवेलेबल हियर। समबडी हैज ड्रॉप्ड अ कमेंट सेइंग कि इंटरनेशनल लॉ के लिए कौन सी इंटरनेशनल केस लॉ के लिए कौन सी वेबसाइट यूज करनी चाहिए। दिस सेशन वाज स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान लॉ, बट इफ इट टर्न्स आउट टू बी लाइक अ हेल्पफुल सेशन देन आई विल शेड्यूल अ स्पेसिफिक सेशन फॉर इंटरनेशनल केस लॉ। नाउ इंटरनेशनल केस लॉ आप किसकी बात कर रहे हो? ICJ का केस लॉ, ICC का केस लॉ, या बाकी कंट्रीज का केस लॉ? तो मैं आप जनरली आपको बता देती हूँ कि आपको अक्सर इंडियन केस लॉ ढूंढना होता है। तो इंडियन केस लॉ के लिए जो वेबसाइट आपको यूज करनी होती है, उसको वेबसाइट नहीं बोलते, सर्च इंजन बोलते हैं, वो है आई कानून। For India, you use iQanun, and a lot of Pakistani law propositions उसके अंदर आपको बाकी countries का भी देखना पड़ रहा होता है कि उनके अंदर क्या कवानीन है किसी भी specific propositions related. For India, because it's a common law country, we do refer to them. iQanun is the search engine. For England, because a lot of our laws are derived from the laws of England and Wales, we have inherited our basic structure from them. For English law, or for sometimes some Australian and Canadian case law as well, जो कि Privy Council के अंदर आया होता है, the websites are, or sorry, the search engines are Westlaw and LexisNexis. You can also use Halsbury's Law, but they're all very specific sort of search engines. इनके courses available हैं कि in Westlaw का भी एक free course है, LexisNexis का भी एक free course है on how to use those search engines. So Westlaw, LexisNexis, and Halsbury for England and Wales. If you're looking for international criminal court, because a lot of national competitions as well have international law propositions. So वो ICC का जो भी आपने केस लॉ देखना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अपनी वेबसाइट के ऊपर उनकी सारी रिपोर्टेड जजमेंट्स गिवन है। फिर ICJ का केस लॉ यू कैन ऑल्सो डू सिंपल गूगल सर्चेस, या आप ICJ के वेबसाइट से जाके ICJ के जजमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस?
No questions? Okay, perfect. So if you guys have no questions, then I'll be concluding the session. Thank you very much, everyone, for joining. I hope you guys found it helpful. And yeah, Adnan Ali, you've raised your hand. Do you have a question? Adnan, you didn't have a question? Kurat Alain has a question. Yeah, thank you, Kurat. Yes, ma'am. So, आपने कहा था कि the last point is rules and regulations to mention in your research. So, I want to ask कि how do you search these things and how do you implement them in your arguments and memorial? वो आप थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं? ठीक है. But Kurat, are you clear about how to search laws, statutes, and case law? Yes. I have done these stages. मुझे rules and regulations पे अभी तक नहीं है. Perfect. So mostly rules and regulations won't be relevant. In very specific sort of situations, you will be actually referring to rules and regulations. Now I'll open rules and regulations for you. Again, go on statute search. I will try and find Judicial Commission of Pakistan rules for you, and I'll tell you आप उनको कैसे find कर सकते हो. You go on J. Judicial Commission of Pakistan rules are here. So in statute search, you also find the rules. अगर मैंने rules ढूंढने हैं पंजाब के कुछ specific, so then we have to open another website called Punjab Code. Punjab Code. Okay, this is a specific website, Punjab Code, जिनके अंदर पंजाब के सारे rules आप ऐसे access कर सकते हो. So you go on the website Punjab Code, you have service rules, general rules, go on general rules, and by department आपको सारे general rules यहाँ पे given है. कि अगर आपने let's say environment से relevant कुछ ढूंढना है, forestry, wildlife and fisheries से relevant या environment protection से, so let's open environment protection here. These are all the relevant rules that have been promulgated in Punjab related to the environment. So you can find that relevant concept. ठीक है? Yes, thank you. Okay, no problem. So statute search में भी आ जाते हैं और पंजाब कोड में पंजाब specific भी आ जाते हैं. Any other things? Any other questions? Okay, perfect. Thank you very much, guys. I hope to see you soon in another session. Thank you. Allah Hafiz.